Hello students of class 9, welcome back in my class once again. Now today I'll discuss before you the conclusion of the French Revolution. In earlier video I have discussed the impacts of the French Revolution on everyday life of the French people. जैसा कि आप जानते हैं, from the very beginning of the establishment of rule of directory in France, it proved very much incapable to take decisions which were very much crucial, very late, and that's why in managing the internal and external condition in France, the rule of directory was very much unpopular. On war front, that's why there was a series of defeats which was faced by the French military when the invading force even entered to the French border. This rule of directory, any directors of this rule became useless, proved useless, and due to their foolish act of non-taking decision, the French people had to bear a great loss in dignity and glory, also with the loss of the finance. Same time, on the war front where Napoleon Bonaparte was discharging its duty, the news of victory on war fronts by the French army on its enemies made the people of France happy. They had seen a ray of hope in Napoleon Bonaparte, and its popularity in France was increased manifold. That's why after some time, up to 1799, a military coup was a natural consequence in France, and after that a three-membered consulate to rule in France was established, in which Napoleon Bonaparte became the first consul. It really, among the three consuls of the consulate, the main power, या कह सकते हैं कि the presiding, the chief ruler was the first consul, यानी in its hand the power to take that decision was concentrated, and other two members were supportive and associate, कह सकते हैं कि subordinate members. So, since Napoleon and its popularity was per day increasing a new height, that's why he became successful in passing an constitutional amendment. Through that, he became the first consul for life in 1802. 1802 तक आते आते, यानी कि 1799 से लेकर 1802 के बीच में ये 3 साल फ्रांस में नेपोलियन की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि उसने एक संवैधानिक अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा अपने आप को होल लाइफ के लिए
जब तक वो जीवित रहे तब तक के लिए फर्स्ट काउंसिल बना लिया, उसको मान्यता मिल गई लेजिस्लेचर से। और उसके बाद जो दौर शुरू होता है, उस दौर में फिर नेपोलियन की लोकप्रियता फ्रांस में आसमान छूने लगती है। एंड फाइनली इन 1804, 2 साल के बाद ही लगभग 1804 में, ही क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। अपने आप को उसने फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ये रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में, मोनार्की के खिलाफ, एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ, वहां से चला। निश्चित तौर पे मोनार्की समाप्त हुई, लेकिन अंतिम परिणति के रूप में अगर देखें तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर किस ओर बढ़ गया। तो एक राजा खत्म हुआ, किसी राजवंश का राज समाप्त हुआ, और उसके बाद इस फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में 1804 में फिर से एक नया राजा मिल गया। वंस मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द न्यू किंग वाज नेपोलियन बोनापार्ट। इस तरह से कह सकते हैं कि नेपोलियन, जिसे जो अपने आप को खुद सन ऑफ डेस्टिनी कहा करता था, वैसे तो एक मैसेंजर, एक अग्रदूत के रूप में उसने अपने आप को सामने रखा। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ दैट ही वाज द सेवियर ऑफ द रिवॉल्यूशन, बट रियली ही हैज किल्ड द रिवॉल्यूशन। क्योंकि जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था, एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस एंड द रूल ऑफ पब्लिक, उसको समाप्त कर दिया। जो फ्रांस एक रिपब्लिक हो चुका था, जहां चुना हुआ व्यक्ति जनता का अब शासन करने के लिए सामने इलेक्शन के बाद फ्रांस में एक निश्चित टर्म के लिए आता था, उसके स्थान पर फिर से एक राजा आ गया, जो कि होल लाइफ एक नया डायनेस्टिक रूल स्टार्ट होता है। फिर भी उस समय तक नेपोलियन लगभग इनविंसिबल था यूरोप में। कुछ घटनाएं हुई थी निश्चित तौर पर उसके पहले, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था, खास करके इजिप्ट के पास। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल यूरोप था, यानी कि यूरोप के स्थलीय भाग में होने वाले विभिन्न सैनिक अभियानों में फ्रांस को नेपोलियन के नेतृत्व में लगातार सफलता मिली। Then once again he led his victory expedition against the enemies of France. फ्रांस के जो भी दुश्मन थे नेबरिंग कंट्री, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो प्रशा हो, चाहे वो रसिया हो, या स्पेन और इटली हो, कोई भी जो नेबरिंग कंट्री, उन सबों के खिलाफ इसने अभियान शुरू किए। और जहां कहीं भी इसे विक्ट्री मिली, वहां उसने वहां के राजवंश का तो अंत किया है, लेकिन साथ ही साथ उसने वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक रूल को स्थापित न करके अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को वहां के राजा के रूप में स्थापित किया। डिफीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रूलिंग डायनेस्टीज इन नेबरिंग कंट्रीज, ही प्लेस्ड देयर पर्सन्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एज द रूलर। उसमें भी अधिकतर जगह उसने अपने ससुराल के व्यक्तियों को राजा के रूप में स्थापित किया। इस तरह से एक लिबरेटर की जो छवि बनी नेपोलियन की, वह यूरोप के दूसरे अदर देन इन अदर कंट्रीज देन द फ्रांस अब धूमिल हो रही थी। क्योंकि जिस लिबरेटर के रूप में नेपोलियन ने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया था, अब ये डायनेस्टिक रूल जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में उसने नेबरिंग कंट्री में जो शुरू किए, इसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा जो शुरू किए गए, इससे नेपोलियन की छवि धूमिल होने लगी। और एक एक करके बाद में ये सारे फ्रेंच एनिमीज जो ट्रेडिशनल रहे थे अब साथ आने लगे। और उसके बाद परिणाम क्या होता है कि
कुछ समय के बाद जब एलाइड पावर्स, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है, अंत में नेपोलियन को 1815 में फाइनली हरा देता है और यहाँ से ही नेपोलियन की सत्ता का अंत हो जाता है। लेकिन उसके पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ए ग्रेट रिफॉर्मर एंड मॉडर्नाइजर। सो ही इम्प्लीमेंटेड मेनी रिफॉर्म्स, कई प्रकार के सुधार उसने किए। निश्चित तौर पे वो सुधार काफी है ना, दूरदर्शी थे, वेरी मच फार साइटेड एंड फैसिलिटेटेड द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन फ्रांस। साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म्स भी कुछ उसने किए, एजुकेशन पर जोर दिया। इन सबों के अलावा जो उसके कुछ जो मुख्य रिफॉर्म्स थे, खास करके व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में जो उसने सुधार लाए, वो काफी दूरगामी साबित हुए। लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने लेजिस्लेशन के थ्रू फिर से एस्टैब्लिश किया, जिसकी डिमांड खास करके मिडिल क्लास के लोग, नोबिलिटी और क्लियर यानी अपर क्लास के लोग तो कर ही रहे थे, मिडिल क्लास के लोगों भी, अपर मिडिल क्लास के लोग भी जो है इसकी डिमांड कर रहे थे और इसको फुलफिल किया, लोगों को खुश किया उसने। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम जो उसने लागू किया समूचे फ्रांस में, इसने वहां के व्यापार को काफी ज्यादा जो है संतुलित कर दिया, उसको बढ़ावा दिया। और उसमें जो खामियां थी, व्हाट वेयर द डिमेरिट्स एंड अनइनफॉर्मिटी इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, इट वाज एबॉलिश्ड एंड द रिजल्ट वाज द ट्रेड वाज नाउ फ्लोरिशिंग डे बाय डे इन फ्रांस। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड सबों में फ्रांस को काफी फायदा हुआ। जो हमने बताया इसके पहले कि जो लिबरेटर के रूप में नेपोलियन अपने आप को डिक्लेयर कर चुका था, उसने कहा आई एम सन ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसलिए क्या करेंगे, तो रिवॉल्यूशन के जो मैसेज थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसको उसने कहा कि हम जहां भी जाएंगे वहां इसको इस्टेब्लिश करेंगे। और यही कारण है कि यूरोप की जनता ने नेपोलियन का स्वागत किया। हर उस जगह जहां नेपोलियन गया, शुरू में लिबरेटर के रूप में उसका स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। लेकिन जैसे ही डायनेस्टिक रूल नेपोलियन ने वहां स्टैब्लिश किया, अपने फैमिली मेंबर्स को स्टैब्लिश करके, तो धीरे धीरे इसकी कलई खुलने लगी। और जो जनता यूरोप की या जो फ्यूडल क्लास भी जो दबा हुआ था, एनिमी जो दबे हुए थे नेपोलियन बोनापार्ट के जो है मिलिट्री जो है वास्तव में जो है शो ऑफ से, उसके कारण अब वो सामने आने लगे। दे वेर नाउ गेटिंग यूनाइटेड। खास करके स्पेन पर जब आक्रमण करता है पेन, नेपोलियन इन्वेडेड स्पेन, तो वहां इसका इस ढंग से विरोध होता है, कह सकते हैं कि विरोध कुछ इस कदर होने लगा कि यहीं से नेपोलियन की पतन की शुरुआत होती है। और अंत में स्थिति जो मैंने आपको बताई कुछ ऐसा होता है कि एट लास्ट ही वाज डिफीटेड फाइनली इन द वॉर ऑफ वाटरलू इन 1815। 1815 में अंतिम रूप से उसे पराजित कर दिया जाता है। सैकड़ों युद्धों का विजेता नेपोलियन, इन ह्यूमन हिस्ट्री द ग्रेटेस्ट कमांडर नेपोलियन, मित्र राष्ट्रों की सेना के द्वारा पराजित हो जाता है। और वह पराजित नेपोलियन सेंट हेलेना के द्वीप में एक निर्वासित जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता है, कुछ अटेंडेंट्स के साथ, जिसमें कुछ डॉक्टर, नर्सेज इत्यादि होते हैं, कुक वगैरह होते हैं। और वहीं वह अपने जीवन की अंतिम सांस भी लेता है। इस तरह से यह महान व्यक्तित्व और इसकी यात्रा समाप्त होती, जीवन यात्रा समाप्त होती। लेकिन द आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द बिगेस्ट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज भी। इस फ्रांस की राज क्रांति ने इस मानवता को, संपूर्ण दुनिया को, विश्व के लोगों को जो सबसे बड़ी देन दी, वो थी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की। इसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा सबके सब समाहित हैं, सबके सब उसमें शामिल हैं। और धीरे धीरे उसका ये मैसेज, उसके आइडियल्स समूचे दुनिया में लोकप्रिय।
टीपू सुल्तान जो भारत का कंटेम्पररी था नेपोलियन का, क्योंकि राइवलरी थी टीपू की भी ब्रिटिश से और नेपोलियन की भी थी, इसलिए इन दोनों में सहज करार हुआ, सहज अंडरस्टैंडिंग हुआ। क्योंकि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऑपरेट कर रही थी, दोनों के बीच में जो कंप्रोमाइज हुआ था लगभग 1798 के आसपास ही, उसके कारण दोनों में काफ़ी मित्रता थी और टीपू की सहायता नेपोलियन करना चाहता था। हालांकि उसका यह प्रयास सफल नहीं हो सका, सिंस ही वाज डिफीटेड इन इजिप्ट एंड हैड टू रिटर्न इन फ्रांस वंस अगेन टू गेन द पावर। लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि टीपू अंत में जो है, हम जैसा इंडियन हिस्ट्री में जानते हैं कि 1799 में वो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम में मारा जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उसका संघर्ष हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल एंड द जीनियस ऑफ द टाइम राजा राम मोहन राय ने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मैसेज को, उसके आइडियाज एंड आइडियल्स को खूब अच्छे से समझा और भारत में भी सोशल रिफॉर्म ला करके यहाँ के लोगों को, है ना, जगाने की कोशिश की। क्योंकि डायरेक्टली वो ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके जो रूलर्स थे भारत में, जो करता धरता थे, उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। सो वेरी वाइजली एंड इंटेलेक्चुअली और स्टार्टेड टू रिजुवेनेट द इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में भी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कुछ मैसेज हैं, उस कंटेम्पररी टाइम में भी और आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो इसने अपना प्रभाव स्थापित किया, दिखाया था। तो कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वास्तव में एक सर्वकालीन क्रांति थी। खास करके इसका महत्व जो है, दुनिया में होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन, सामाजिक राजनीतिक जो परिवर्तन होते रहे हैं, है ना, उसमें इसका अच्छा खासा महत्वपूर्ण स्थान है। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज दुनिया में जो हम देखते हैं, जो इतना डेमोक्रेसी जो पॉपुलर है, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस है, उसका श्रेय इस जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जाता है निश्चित तौर पे। इस तरह ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपके क्लास में करिकुलम में है, यह चैप्टर आज आपका समाप्त हुआ। अब जो है दूसरे चैप्टर के साथ जो हम फिर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक इंतज़ार करें। थैंक यू।